Welcome back to this YouTube channel, The Quest Maths for All by Toor Sir। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। और now let's begin with the last topic, that is miscellaneous examples and miscellaneous exercise of this chapter, complex numbers of class 11th. So first example of this miscellaneous example series is asking you to find the conjugate of this complex number। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਜ ਏ ਰੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਮਰੇਟਰ ਔਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ ਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਨੂਮਰੇਟਰ ਔਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਕੰਜੂਗੇਟ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਏਗਾ 6। ओके, ए भी हो गया -6 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा। ठीक, फिर आयोटा कॉमन करते हैं, 3 and 3 9 एंड -4 राइट। ऊपर मैं की किया इन दो ब्रैकेट्स दी इन दो फैक्टर्स दी मैं मल्टीप्लाई कर दी। नीचे भी सेम 1 into 2, ठीक है, 2 आयोटा इंटू माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 और -2 बनेगा तब +2 हो जाएगा। Right, now iota common, this will multiply with this minus iota plus 4 iota, the -1 plus 4 right। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। 12 plus 5 iota divided by 4 plus 3 iota। ओके, ਤਾਂ ਆ ਚਾਰ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂਮਰੇਟਰ 2 ਨੂਮਰੇਟਰ ਔਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਆਇਓਟਾ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਜੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਓਟਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ 4 - ਦਿਸ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਦੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। 12 4 आर 48 और इतने आ जाएगा +15 प्लस आयोटा -36, ठीक है, और +20 राइट। नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 16 + 9 राइट। ਹੁਣ आ जाएगा ये 63 प्लस आयोटा -16 डिवाइडेड बाय 25। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੰਜੂਗੇਟ ਆਫ ਦ ਗਿਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ 3 - 2 आयोटा मल्टीप्लाइड विथ 2 + 3 आयोटा, ठीक है, 1 + 2 आयोटा एंड 2 - आयोटा। कंजुगेट का मतलब है इस पूरे कंपलैक्स नंबर के ऊपर तुसी बार लगाना है एंड द रिजल्ट विल बी + आयोटा टू - आयोटा कर दो। तो 63 - आयोटा इंटू -16 मैं उमें रखा है सीगा 25। और इस माइनस और माइनस नूं तुसी जो है मल्टीप्लाई करांगे तो ये हो गया 63 + आयोटा 16 / 25। दिस इज द राइट आंसर, कॉन्जुगेट। नैक्सट क्वेश्चन है मिसलिनियस एग्जाम्पल के फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ दिस कॉम्पलैक्स नंबर्स। तो जो प्रीवियस मेरा जो वीडियो है जिसे आप 5.2 और 5.3 एक्सरसाइज की सी, तो लोड्स ऑफ क्वेश्चन आई हैव गिवन यू, उन्होंने सोल्यूशंस मैं तुहानूं दिते ने कि मॉडुलस और आर्गूमेंट किवें कट सकते हैं। और इन्हां दे लई भी तुसीं बस एक क्वाड्रेंट वाली गल याद रखो कि फस्ट क्वाड्रेंट दे विच आर्गूमेंट की वैल्यू थीटा है, सैकेंड क्वाड्रेंट दे विच आर्गूमेंट की वैल्यू 180 - थीटा है, और थर्ड दे विच इहदा मिरर इमेज है -180 - थीटा, और फोर्थ विच इहदी मिरर इमेज है -थीटा, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ Z, आर्गूमेंट्स और एंप्लीट्यूड जिन्होंने आप कहते हैं राइट। हुण तुहानूं इहदे विचों फिर एक क्वेश्चन होर करके दिखा दिंदे आ।
ਤਾਂ z is 1 plus iota over 1 minus iota. Rationalizing, here we have 1 plus iota whole square, the 1 square iota square minus 1 plus 2 iota over 1 plus 1. So 1 minus 1 cancel, 2 will cancel in the denominator and you have just iota. Okay, और iota ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡੂਲਸ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐ ਲਿਖ ਲਓ r cos theta plus iota sin theta, ਰਾਈਟ। r cos theta ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 0 और r sin theta ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, that is 1, क्योंकि ਇੱਥੇ 1 iota है ना, ठीक है। स्क्वायर और ऐड करांगे तो r स्क्वायर आ जाएगा 0 plus 1 that is 1, so r is greater than 0, तो आप r1 ले लिया, ठीक है। और r1 लवांगे तो cos थीटा की वैल्यू आएगी 0 और इतों sin थीटा की वैल्यू आएगी 1। दोनों ही पॉजिटिव ने, ऐसा मतलब साइन ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है हो सकते हैं और सेकंड भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि दोनों पॉजिटिव है इस करके सेकंड विच क्योंकि कॉस नेगेटिव होता है इस करके फर्स्ट क्वाड्रेंट विच नहीं। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा इज जो दोनों सैटिस्फाई करता हो π/2 0 sin π/2 इज 1 तो π/2 राइट। सो थीटा एज इट इज ले लेंगे आप थीटा π/2। दिस इज योर आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/2। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, मॉडुलस आ गया, आर्ग्यूमेंट आ गया, पोलर फॉर्म की आएगी अभी, फिर पोलर फॉर्म भी नाल तुम दस देना। तो पोलर फॉर्म आ जाएगी r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू भर दो, r की वैल्यू 1 है एंड हेयर यू हैव cos π/2 प्लस साइन ऑफ π/2। जे तुसी π/2 की वैल्यू भरोगे तो cos π/2 0 है, sin π/2 कितना है 1, तो सिर्फ आयोटा बचेगा, दैट इज दिस। इस तरह आप मॉडुलस और आर्गूमेंट मैं तुहानू दोबारा फिर दसता। और इस नैक्सट पार्ट दे विच तुसी जदों इहनू रैशनलाइज करोगे 1 over 1 plus iota 1 minus iota over 1 plus iota, सो 1 minus iota ऊपर आ जाएगा और इहदा आपां जो करांगे तो 1 iota square, ठीक है। दिस इज माइनस iota बिकॉज वी आर रैशनलाइजिंग इट, तो 1 plus 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 एज इट इज़ और 1 minus iota, तो r cos थीटा कितना आएगा 1/2 और r sin थीटा कितना आ जाएगा -1/2। तो जो आप r की वैल्यू कटांगे, r की वैल्यू आएगी एदा स्केयर प्लस एदा स्केयर, ठीक है। और 2/4 यानी कि 1/2, तो r आ जाएगा प्लस 1/2 अंडर दी रूट, राइट। और थीटा जो है देखो कॉस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पॉजिटिव है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ cos थीटा आ जाएगा 2 अंडर रूट, 2 अंडर रूट ऊपर आएगा, 2 नीचे है, तो 1/2 अंडर रूट आएगा, क्योंकि आप इतने r की वैल्यू भर रहे हैं 1/2 अंडर रूट, राइट। चलो इतने पता भर के दिखाना, तो 2 अंडर रूट ऊपर आएगा, 2 नीचे है, तो जब आप कैंसिल करांगे तो 1/2 अंडर रूट आ जाएगा। और साइन थीटा जो आएगा वो आएगा -1/2 अंडर रूट। हुन cos थीटा पॉजिटिव है, साइन थीटा नेगेटिव है, सो थीटा लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, ठीक है। बट यू एक बार साइन नू भुल जाओ और थीटा की वैल्यू कटो, थीटा की वैल्यू कितनी है π/4, लेकिन थीटा लाइज कितने कर रहा है दोनों के लिए, आर्गूमेंट के लिए cos पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, ठीक है। 4th में थीटा कितना होता है, वो मिरर इमेज है, माइनस थीटा हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू आएगी -4। तो आर्गूमेंट की आ गया, फिर आर्गूमेंट के लिए थीटा की वैल्यू आएगी -π/4, बस पुट कर दो इतने। 14th एग्जाम्पल x plus iota y is equal to a plus iota b, a minus iota b, and you have to prove that real part ਦਾ स्केयर और इमेजिनरी पार्ट ਦਾ स्केयर जो 1 है। तो सीधी जी गल है, तुसी पहले इनू सॉल्व कर लो, सॉल्व करके x और y यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू कट के कंपेयर करके फिर स्क्वेयर कर दो। तो किमें कर सकते हैं इनू, देखो पहले तुसी इनू रैशनलाइज करो a plus iota b, और इधर रैशनलाइज करांगे तो a plus iota b आ जाएगा, तो a plus iota b नाल मल्टीप्लाई और a minus iota a plus iota b नाल डिवाइड, मतलब डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करता।
ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ a प्लस आयोटा b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ ਔਰ ਨੀਚੇ ਬਣ ਗਿਆ a माइनस b x माइनस y और x प्लस y ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ है ना। एक पॉजिटिव फैक्टर है एक नेगेटिव फैक्टर है राइट। तो ऊपर आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू आयोटा राइट। मतलब मैं आला इकट्ठा कर रहा और आयोटा अलग लिखता और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ਹੁਣ दोनों पासे तुसी कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू आएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और y की वैल्यू आ जाएगी 2ab ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट। की यूज कर रहे हैं आयोटा स्क्वायर इज -1 ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ यूज ਕੀਤਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ बस ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਸੌਰੀ ਸਕੁਆयर कर दो स्क्वायर करो दोनों का और फिर ऐड करो तो इत्थे स्क्वायर करांगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर दा होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दा होल स्क्वायर। हुण जो तुसीं इहनूं सॉल्व कर दोगे तो स्क्वायर आपां स्क्वायर करांगे ना तो आ जाएगा a4 प्लस b4 प्लस माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर बी स्क्वायर होल स्क्वायर। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ये बचेगा यू विल लेफ्ट विद प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर बी स्क्वायर होल स्क्वायर राइट। ऊपर फिर फार्मूला बन गया फार्मूला कितना बनया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दा होल स्क्वायर और नीचे भी वही है a स्क्वायर b स्क्वायर दा होल स्क्वायर कैंसिल हो गए 1 आ गया दैट इज योर राइट हैंड साइड। दिस इज द प्रूफ ऑफ द 14th एग्जांपल। 15th एग्जांपल दे विच ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहा है फाइंड द रियल थीटा। एग्जांपल नंबर 15 फाइंड रियल थीटा such that this complex number 2 iota sin theta over 1 minus 2 iota sin theta is purely real। आ थोड़े कोल स्टेटमेंट है तो प्योरली रियल का मतलब होता है कि इमेजनरी पार्ट नहीं है जीरो कर देना। तुसी सब तो पहले तुसी की करोगे रैशनलाइज करना है 3 प्लस 2 आयोटा इंटू साइन थीटा 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। रैशनलाइज का मतलब की होता है डिनोमीनेटर का साइन चेंज करके ओना मल्टीप्लाई और ओना ही नोमिनेटर और डिनोमीनेटर को मल्टीप्लाई कर दो बस ओना ही फैक्टर। ਹੁਣ देखो ਇਹਨੂੰ सॉल्व करके ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਦੀ ਉੱਪਰ ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੇਗਾ 3 4 sin स्क्वायर थीटा ठीक है डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट भी लेना है ना तो 8 sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। हुण क्योंकि आ कॉम्प्लेक्स नंबर की है प्योरली रियल है तो प्योरली रियल है दिस मीन्स दैट इट्स इमेजिनरी पार्ट a sin थीटा डिवाइडेड बाय 4 साइन स्क्वायर थीटा इज 0 अकॉर्डिंग टू गिवन। अकॉर्डिंग टू गिवन का मतलब है कि अपन को एक कंडीशन दी हुई है कि उहदे विच इमेजिनरी पार्ट नहीं है और हाँ इनू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो गया। इतना मतलब कि निकलिया कि साइन थीटा 0 है ठीक है। हुण साइन थीटा 0 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विच आपां कीता सीगा कि साइन थीटा 0 होए तो थीटा की हुंदा है मल्टीपल ऑफ पाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई सो थीटा इज दिस। एग्जांपल नंबर 16 वो कह रहे हैं कि एस कॉम्प्लेक्स नंबर नू एक थानू कॉम्प्लेक्स नंबर दिता है आयोटा -1 डिवाइडेड बाय cos ऑफ पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन बाय पाई बाय 3 इनटू पोलर फॉर्म। एस कॉम्प्लेक्स नंबर नू तुसी पोलर फॉर्म दे विच लिखो तो पहले तो पाई बाय 3 और पाई बाय 3 की वैल्यू भर लो फिर रैशनलाइज कर लो आयोटा -1
पाई बाय 60 ये हो गया हाफ 60 का है ना, cos 60 हाफ होंगे और ये होंगे 300/2 राइट। हुण इहनूं रैशनलाइज कर लो, देखो रैशनलाइज करके ऊपर दी ऊपर मल्टीप्लाई नीचे दी नीचे मल्टीप्लाई दोनों ब्रैकेट्स दी, ठीक है। फिर आप ये कई बार कर चुके हैं ना, तो उदों बाद देखो मल्टीप्लाई होके की आ जाएगा, ठीक। मल्टीप्लाई होके कट कटा के थोड़े को टोटल आएगा 300√-1/2, ये तो रियल पार्ट है, प्लस 300√-+1/2 इंटू आयोटा, आ टोटल सॉल्व होके आ जाएगा। तुसीं की किया पहले देखो ऊपर भी एलसीएम ले लो, नीचे भी इन्हों का भी एलसीएम ले लो, आ दो सारे ना कट जाएंगे, ठीक है। उदों बाद तेरा आ रियल और इमेजनरी पार्ट इकट्ठे कर लो, एस ब्रैकेट की ये मल्टीप्लाई करो, ठीक। हुण इहनूं पोलर फॉर्म च लिखना है। पोलर फॉर्म होंदी की है अपने कोल cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। हुण कंपेयर करो दोनों तरफ, कंपेयर करांगे तो r cos थीटा कितना आ गया 300√-1/2 और r sin थीटा कितना आ गया 300√+1/2, राइट। पोलर फॉर्म करनी है, पोलर फॉर्म करनी तो पहले r भी कढ़ना पेगा, तो फिर स्क्वेयर कर दो, स्क्वेयर ऐसा करांगे तो 300√-1 होल स्क्वेयर प्लस 300√+1/2 होल स्क्वेयर। होल स्क्वेयर का तुसी इहदे च फार्मूला खोल लो, फार्मूला खोल के और जो आप फार्मूला खोलना मतलब है स्क्वेयर का फार्मूला, एदा स्क्वेयर प्लस 2ab, a स्क्वेयर b स्क्वेयर 2ab, नीचे आ जाएगा 4, फिर ऊपर बचेगा टोटल सॉल्व होके 2 × 4 डिवाइडेड बाय 4, तो ओनली r स्क्वेयर की वैल्यू बचेगी 2, तो r बच जाएगा +2√, क्योंकि आप पॉजिटिव लेना है, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 2√, ले लिया। हुण 2√, ले लिया तो cos थीटा की वैल्यू की आई, फिर 2√, आ गया, नीचे 2√, आ जाएगा, ठीक है। तो cos थीटा आ गया 300√-1 2 × 2√, r की वैल्यू पुट की ना, r नीचे डिनोमिनेटर आ जाएगा, r की वैल्यू आ है। sin थीटा की वैल्यू आएगी 300√+1/2 × 2√, डिवाइड करो हम दोनों, डिवाइड करांगे तो टेंजेंट थीटा कितना आ जाएगा, 2√, कैंसिल हो जाएगा, आ ऊपर 300+1/300√-1, ठीक। ਇਹਦੇ तो एक फार्मूला बनाओ, तुहानू याद आएगा फार्मूला। पहले तो देखो इनू अपने को टेंजेंट थीटा इज ऊपर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर नू 300 नाल डिवाइड करो, तो इत्थे आएगा दोनों नोमिनेटर भी डिनोमिनेटर भी, तो 1 + 1/300 आ गया और नीचे आ गया 1 - 1/300। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर नू 300 दे नाल डिवाइड करता, इत्थे 300/300 करांगे तो 1 आ गया और 1/300, इत्थे 1 और 1 - 1/300 आ गया। हुण देखो ध्यान नाल, आ तुहाडे कोल एक फार्मूला बन रहा है थीटा ऑफ a + b का फार्मूला, याद है ट्रिग्नोमेट्री दे विच टेंजेंट a टेंजेंट b 1 - टेंजेंट a टेंजेंट b, राइट। आ की बनया ध्यान नाल दसो जरा, ए बनया टेंजेंट π/4, आ की बनया टेंजेंट π/6, टेंजेंट 30 इज 1/300, आ बन गया टेंजेंट π/4 माइनस टेंजेंट π/6, ठीक है, ओके। तो इत्थे फार्मूला की बनया फिर टेंजेंट ऑफ π/4 प्लस π/6, ठीक है। यानी इत्थे ऐ कर दिंदे आ बनया 1 माइनस टेंजेंट π/4 इंटू π/6, आ फार्मूला बन गया, राइट। तो आ बन गया टेंजेंट π/a प्लस b का फार्मूला। और दोनों पासे टेंजेंट इनवर्स लवांगे तो इधर आ गया टेंजेंट थीटा, दोनों तरफ टेंजेंट इनवर्स लेने तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/4 प्लस π/6, राइट। दोनों नू हुण ऐड कर दो, दोनों नू ऐड करन तो बाद तुहाडे कोल आ जाएगा 5π/12, ठीक है। 12 एलसीएम आ गया, 3π
ਤੇ 2 ਪਾਈ 5 ਪਾਈ ਬਾਈ 12 ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆਫ z ਔਰ ਮੋਡੂਲਸ ਕੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ ਇਜ਼ r is 2 under the root and here we have cos 5 pi by 12 plus iota sine of pi 5 pi by 12 this is your miscellaneous examples जो ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ miscellaneous exercise ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ same questions ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ एक्सरसाइज 5.1 5.2 5.3 ये सब तुसी पहले कर लो फिर थानू एक्सरसाइज बहुत ईजी पेगी तो फर्स्ट क्वेश्चन आयोटा पावर 18 1 ओवर आयोटा पावर 25 मैं तुहानू दस चुकिया कि आयोटा स्क्वेयर दे आगे आगे पावर्स बनाई चलो आ जाएंगे तुहाडे कोल फर्स्ट क्वेश्चन भी मैं छड़ रहा मीनस तुहाडे लिए स्किप कर रहा और स्टेटमेंट तुसी देखोगे मेरी स्क्रीन के उपर या तुसी अपनी NCERT की बुक खोल लो वो फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन भी थर्ड क्वेश्चन है रिड्यूस दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 1 over 1 minus 4 iota minus 2 over 1 plus iota multiplied with 3 minus 4 iota 5 plus iota to the standard form ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ a plus iota b ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਫੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ LCM ਲੈ ਲਓ और दूसरे वाला जो फैक्टर दिता है 3 minus 4 iota over 5 plus iota ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ फिर दोनों रैशनलाइज करके दोनों फैक्टर की मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी तुहाडे कोल थर्ड तुहानू दसदा मैं फोर्थ पार्ट जिहड़ा हैगा वो है तुहाडी एग्जाम्पल नंबर 15 तरह जो 15 विच आपां रियल और इमेजिनरी पार्ट सैपरेट करके स्क्वेयर किया सीगा फिफ्थ पार्ट है यू हैव फिफ्थ क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म वो आपां कितनी बार कर चुके हैं है ना फर्स्ट पार्ट है 1 plus 7 iota over 2 minus iota whole square तो सब तो पहले तुसीं इहनूं नीचे दा स्क्वेयर खोल के देखो मेरा तुसीं बुक देख रहे होवोगे मेरी स्क्रीन के ऊपर ही तुहानूं फिफ्थ क्वेश्चन नज़र आ रहा है 1 plus 7 iota 2 minus iota whole square और सैकेंड दे विच है 1 plus 3 iota over 1 minus 2 iota इहदे विच भी पहले रैशनलाइज करो यानी कि जो डिनोमिनेटर है 1 minus 2 iota इहदा साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करो फिर ऊपर दी ऊपर मल्टीप्लाई नीचे दी नीचे मल्टीप्लाई यू विल गेट योर पोलर फॉर्म पोलर पहले कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा फिर उन्होंने r cos थीटा इस तरीके दे नाल फिर कंपेयर करोगे r cos थीटा r sin थीटा फिर r की वैल्यू कटोगे दोनों की स्क्वेयर और ऐड करके फिर थीटा कॉमन देखोगे कि किहड़े क्वाड्रेंट विच आ रहा है ये तो हो गए तुहाडे 5 क्वेश्चनस 5 क्वेश्चनस ऑलरेडी तुसीं अगर पिछली एक्सरसाइजेस कर लैंदे हो तो मिसलेनियस के पहले 5 क्वेश्चन तुहाडे लई बहुत ईजी पैणगे हुण है 6th क्वेश्चन तो लैके 9वें क्वेश्चन तक ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपां करिए ना है कि नहीं फिर 5.3 दे विच वैरी ईजी इहदे विच डी चैक करो लैस दैन 0 हर एक क्वेश्चन दे विच 6 7 8 9th हुण हैगे 10th क्वेश्चन मॉडुलस कढना है 11th क्वेश्चन तुहाडा एग्जाम्पल नंबर 15th वर्गा है 10th क्वेश्चन दे विच z1 is 2 minus iota z2 is 1 plus iota find the modulus of z1 plus z2 plus तब सब तो पहले तुसी z1 और z2 की वैल्यू भरो नीचे भी z1 minus z2 की वैल्यू भरो ऊपर प्लस जोड़ना है नीचे आयोटा दोनों को सबट्रैक्ट करके आयोटा जोड़ना है फिर रैशनलाइज करना है फिर मल्टीप्लाई करके फिर मॉडुलस काट के दिखाना है ठीक है मॉडुलस मीन्स रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 11th क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 15th वर्गा है 12th क्वेश्चन दे विच z1 और z2 की वैल्यू भरनी है ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे उसका कॉन्जुगेट और फिर रियल पार्ट कट के दिखाना है जो जब सोल्व हो जाएगा और सैकेंड विच इमेजिनरी पार्ट करना है 1 over z1 दा कॉन्जुगेट फिर दोनों की मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज करके फिर इमेजिनरी पार्ट करना है तुसीं 13th क्वेश्चन फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर वेरी इजी मॉडुलस एंड आर्गूमेंट कितनी बार कर चुके हैं 1 plus 2 iota over 1 minus 3 iota ठीक है 14th क्वेश्चन फाइंड द रियल नंबर्स x and y if this is the conjugate चलो 14th मैं करवावांगा थानू 15th भी करवावांगा इहदे तो अगे फिर आप चलते हैं ठीक है सो लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਈਜ਼ਲੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਾਲ ਮੀ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ੂਮ ਕਲਾਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਈ ਵਿਲ particularly made a lecture for that particular question, okay। ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ 14th ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, is asking you to find out x and y such that this product of two complex numbers is the conjugate of this। कह रहा है कि इन्हां दोनों कंपलैक्स नंबर की अगर तुसी मल्टीप्लाई करो तो जिहड़ा मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा वो इस कंपलैक्स नंबर के कंजुगेट के बराबर होगा, इज द कंजुगेट ऑफ दिस। सो सब तो पहले तो तुसी फिर इन्हां दी मल्टीप्लिकेशन कर लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपां नूं कि चलो ये लास्ट च लिख लांगे, पहले आपां इन्हां दी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आपां नूं गिवन की है, गिवन इज x माइनस आयोटा y इंटू 3 प्लस 5 आयोटा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो रियल पार्ट इकट्ठे कर लेंगे। 3x प्लस 5y मैं की किया इनू ए मल्टीप्लाई और माइनस आयोटा नू ए तो 5y माइनस आयोटा स्केयर आ जाएगा और आयोटा स्केयर इज -1 तो माइनस आयोटा इज प्लस। आयोटा कॉमन कर लेंगे, इनू इधर मल्टीप्लाई 5x माइनस 3y। सो दिस इज द product of these two complex numbers. Now according to question, yeah, given this product is equal to 3x plus 5y plus 5x minus 3y, this is the conjugate of this -6 minus 24i iota और एदा conjugate। ਇਹਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਏਗਾ कि आयोटा ਨੂੰ माइनस आयोटा ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ -6 plus 24 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड as it is। now compare the real and imaginary parts on both sides, left hand side and right hand side। so you have 3x plus 5y is equal to -6 and imaginary part is 5x minus 3y is equal to 24। Now solve these two equations. These are the linear equations of your 10th class and you have to solve these two and find out the value of x and y, okay। so इनू आपां फिर ऐ करते हैं, इनू 5 नाल मल्टीप्लाई कर दो और इस इक्वेशन नू 3 नाल मल्टीप्लाई कर दो तो x इक्वल हो जाएंगे। तो आ जो है अपने को बनेगी 15x प्लस 25y। 5 नाल मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड्स, इनू 3 नाल मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरी इक्वेशन नू -9y, ठीक है। आ गया अपने को। हुण आपां नूं की करना चाहिए, इन्हां नूं माइनस कर दिए, आ प्लस आ माइनस, दिस विल कैंसल आउट। आ हो जाएगा 34y एंड दिस इज इक्वल टू 102 -102, राइट। हुण इनू जदों आपां सॉल्व करांगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -102 over 34, दिस इज -3, राइट। और y की वैल्यू -3 हो तुसी किसी एक इक्वेशन च भर दो, चाहे ऐसी इक्वेशन च भर दो चाहे ऐसी इक्वेशन च भर दो। आ तो मैं 3 नाल जो मल्टीप्लाई किया सीगा वो है, तो चाहे ये भर दो चाहे ये y की वैल्यू इत्थे भर दें आप, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन के -15 -6 3x is equal to plus 9, x is equal to 3। so x 3 आया और y जो आया वो -3 आया। this is the our answer of this question, right। next question is question number 15। he is asking you to find the modulus of 1 plus iota over 1 minus iota। 15th question, मॉडुलस पता करना है 1 plus iota over 1 minus iota multiplied with the second bracket you have
1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, तो विचकर माइनस है। आ दो रैशनल ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਯੂ हैव टू टेक द एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा इन द डिनोमिनेटर 1 प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, दिस विल मल्टीप्लाई हेयर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, और फिर जो बचेगा ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ मॉडुलस करके दिखाना है। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर ਦਾ होल स्क्वायर खोलांगे, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, तो ਇਹਦਾ स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, राइट। ਇਹਦਾ आ गया 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, राइट। और नीचे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 आ जाएगा, ओके। तो आ भी जीरो और 2 आयोटा माइनस प्लस 2 आयोटा, तो 4 आयोटा ऊपर आ गया और नीचे आ गया 2, और आप ਇਹਦਾ मॉडुलस ਕੱਢਣਾ है 2 आयोटा मॉडुलस। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖ दो, ओके। जीरो क्योंकि ਇਹਦੇ ਚ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡੂਲਸ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ प्लस इमेजिनरी पार्ट द स्क्वायर अंडर द रूट, the 4 under the root is 2, this is the answer, modulus of this. Now you will have the 16th question, x plus iota y cube is equal to u plus iota v, show that, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ u over x plus v over y is equal to 4 times x square minus y square. So what do you have to do? You just ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 3 ਪਾਵਰ ਹੈ, 3 ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, find the value of u and v. u is the real part, v is the imaginary part, और फिर लेफ्ट हैंड ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿਓ, ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ओके। तो ये 15 क्वेश्चन का आप सोल्यूशन जो है वो हम रब कर रहे हैं, 16 कर रहे हैं फटाफट लेफ्ट हैंड साइड और नू आप एक्सपैंड कर देने हैं। तो फार्मूला लगा रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a b square, right, a cube b cube 3a square b 3a b square, और राइट हैंड साइड कितने बराबर है, राइट हैंड साइड है u plus iota v। चलो हुण इहदे विच रियल और इमेजिनरी पार्ट सैपरेट कर लेने हैं जल्दी जल्दी। ये आ जाएगा x क्यूब, आयोटा दी क्यूब होंदा है माइनस आयोटा, ये तुहानूं ऑलरेडी दस चुके हैं। इत्थे आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर y आयोटा, आ चीज़ ठीक है। इत्थे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो 3x y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। और आ दोनों इमेजिनरी पार्ट ने, और आ जिहड़ा हैगा फर्स्ट एंड फोर्थ, दिस इज द रियल पार्ट। सो द वैल्यू ऑफ u इज x क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर, comparing both sides, the real and imaginary part. v is minus y cube, here you have cube, okay, क्योंकि आयोटा y क्यूब सी, आयोटा क्यूब तो आ गया माइनस आयोटा, ठीक है, और y क्यूब आ गया y क्यूब, ठीक है। तो इतने y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y, ये मैं कंपेयर कर ले रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड्स। हम की करना है, हम आप प्रूव करके दिखाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो यदि जो आप प्रूव करनी है, u ओवर x v ओवर y। चलो u और v की वैल्यू पुट कर दें, इतने कर दो, u की वैल्यू है आ, और ये विचों x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन कर लो, u की वैल्यू भरन लगे, अंदर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, राइट, और डिनोमिनेटर इज x प्लस v दे विचों y कॉमन आपां लैने आ, y
माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x square, right? And denominator is y. So x will cancel here and y will cancel here. You will left with x square minus 3y square minus y square plus 3x square. Now adding both sides, x वाली terms जोड़ते हैं तो आ जाएगा 3x square तो ऑलरेडी पहले तो है ना, तो 3 और एक कितना आ गया 4 है ना, और 4 ही y आ गया, 4 कॉमन काट लो, x square minus y square and this is your right hand side. समझ आ गया होना है. This is your 16th question. Okay, now let's move towards 17th question. Another different question, we can say that, but it is different. जो भी प्रैक्टिस करेगा, जिन्हें भी पिछली एक्सरसाइज कीतियां हुई ने उन्होंने वास्ते तो ये बिल्कुल ईजी पएगा. ओके, बट आई एम कंसिडरिंग इट समवट डिफरेंट. जो भी बच्चे पहली बार कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि अल्फा और बीटा दो डिफरेंट कॉम्प्लैक्स नंबर्स ने, जिन्हां विचों सैकेंड कॉम्प्लैक्स नंबर है ਉਹਦਾ मॉडुलस जो है दैट इज गिवन टू अस टू बी 1. ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਫਿਰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫਿਰ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ a plus iota b और बीटा जो सेकंड कॉम्प्लैक्स नंबर है वो ले लो x plus iota y, राइट. ਹੁਣ बीटा मॉडुलस ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 1. दैट मीन्स मॉडुलस ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट, और वो 1 है. अंडर रूट हटावांगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. ठीक है, अंडर रूट जो आप दूसरी साइड लेके जाते हैं या हटाने दोनों पासे स्क्वायर करते हैं तो प्लस माइनस 1 आना है. तो प्लस माइनस 1 जो की लवोगे प्लस 1 लवोगे, क्योंकि मॉडुलस कदे भी नेगेटिव नहीं हुंदा. ये आप कर लिया रख के, ठीक है, निकाल के रख लिया. हुण ले लो जो आप मॉडुलस लेना है, हुण इन्हां दी वैल्यू भरदे हैं. बीटा माइनस अल्फा ओवर अल्फा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कंजुगेट, दिस बार इज कंजुगेट. तो बस कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज भर दो, उसके बाद सॉल्व भी करना है. फिर बीटा इज एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस अल्फा इज माइनस ए माइनस आयोटा बी. आ वाला माइनस ले लेना अगे, ठीक है. और ਇਹਦਾ भी मॉडुलस लेना है. ਇੱਥੇ आ गया 1 माइनस अल्फा बार इज ए माइनस आयोटा बी. माइनस क्यों है, क्योंकि कंजुगेट ले रहे हैं. बीटा एज इट इज ਇਹਦੀ मल्टीप्लिकेशन दिखानी है, तुसी समझ आ गया. हम रियल एंड इमेजनरी पार्ट जो है वो इकट्ठे कर लो. आ गया x माइनस ए प्लस आयोटा y माइनस बी, राइट. नीचे की करो, इन्होंने दोनों की मल्टीप्लाई करके रियल और इमेजनरी पार्ट फिर इकट्ठे कर लो. तो आ गया ax, ठीक है, 1 ax, और इन्होंने अदर मल्टीप्लाई करांगे तो क्या आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर by, तो कितना आ जाएगा प्लस by, ठीक है. और इधरों आयोटा कॉमन करो प्लस आयोटा, ठीक है. और इधरों आप इनू करली ब्रैकेट में ले लेने, इन्होंने दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना. तो आयोटा कॉमन कटांगे तो आधर आ जाएगा ए वाई, और इत्थे आ जाएगा माइनस बी एक्स, ठीक है, और नाल मॉडुलस है. बोलो समझ आया. हुण एक बार ऊपर का सेम रखते हैं, एक्स माइनस ए इकट्ठा ही कटांगे मॉडुलस, ठीक है, प्लस आयोटा वाई माइनस बी. देखो ना इकट्ठा मॉडुलस है ना, तो फिर अलग अलग फार्मूला लगा दो. फार्मूला की दस्या है दोनों, फार्मूला क्या है, आ वाला फार्मूला Z1 ओवर Z2 इकट्ठा मॉडुलस अगर होवे डिवीजन विच तो अलग अलग हो जाता है. नोमिनेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग. हुण इहदे विचों आ 1 माइनस है, माइनस साइन सी ना, तो माइनस दोनों का अगे लगना है, इत्थे भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा. तो कितना बनेगा 1 माइनस ax माइनस by, आ हो गया रियल पार्ट, और आ माइनस इत्थे भी लगेगा माइनस आयोटा ay माइनस bx. चलो हुण इहदा मॉडुलस अलग हो गया. बस हम दोनों का ऊपर नीचे मॉडुलस निकाल लो, ठीक है. इधर करते हैं. तो मॉडुलस का मतलब क्या होता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर.
तो इतने क्या आ गया x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर, नीचे क्या आ गया 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट की है माइनस ऑफ दिस, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा और एदा स्क्वायर कर देने ए वाई माइनस बी एक्स दा स्क्वायर। ठीक है, हुण बस तुसी दा स्क्वायर का फार्मूला खोलना है, ऊपर नीचे स्क्वायर का फार्मूला खोल लेना तुसी, है ना। आप जो मॉडलस लैने तो अंडररूट भी तो आता है ना, आ अंडररूट आ गया, एदा भी तो अंडररूट आएगा, राइट। तो ये चलो तुसी रखो संभाल के, है ना। मॉडलस का आप जो करते हैं देखो अंडररूट आता है ना मॉडलस के विच, ठीक है। हुण तुसी ऊपर भी स्क्वायर खोल दो, नीचे भी स्क्वायर खोल दो, स्क्वायर खोलन तो बाद फिर इन्हों थोड़ा सैट कर दें की आएगा, फिर देखो ध्यान नाल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। मैं स्क्वायर कर दो बाद के स्टैप्स लिख रहा, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by अंडर द रूट एज इट इज, नीचे एदा स्क्वायर खोलो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, ठीक है। ये 3 वाले का स्क्वायर का फार्मूला है, और स्क्वायर करने तो बाद जो आप सैट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by। ओके, तो आ चीज़ सिर्फ आप ऊपर नीचे जो है इन्हों का स्क्वायर खोल के इन्हों सैट किया। हुण जदों उन्हें दिता सीगा बीटा मॉडुलस 1, बीटा मॉडुलस 1 का मतलब की सीगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज 1, तो जिथे जिथे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है उत्थे उत्थे 1 भर दो, तो भरन तो बाद देखो की बनता है, नोमरेटर थोड़े को बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by, डिनोमिनेटर देखो की बनेगा 1 प्लस आधा 1 हो गया ना, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आ भी 1 हो गया, आ भी 1 हो गया, है ना। और की रह गया 2a माइनस 2ax माइनस 2by, और नोमरेटर और डिनोमिनेटर देखो बिल्कुल सेम आ गए। की यूज कर रहे हैं, यूजिंग बीटा मॉडुलस इज इक्वल टू 1, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आप यूज कर रहे हैं। नोमिनेटर डिनोमिनेटर 1 आपस में कैंसिल होंगे तो कितना बचेगा 1, तो एदा मॉडुलस की आया दैट इज 1। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इंटीग्रल, इंटीजर्स वैसे पॉजिटिव इंटीजर भी होंगे ने, नैगेटिव होंगे तो जीरो भी आती है, ठीक है। इंटीजर मतलब होल नंबर्स, पॉजिटिव चाहे नैगेटिव जो मर्जी हो सकता है, इंटीग्रल होने चाहिए ने, बट वो नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। किन्ने नंबर किन्ने ने, ठीक है, एक है, एक सोल्यूशन आएगा, 2 सोल्यूशन आएगा, किन्ने आएंगे वो पूछ रहा है थोड़े को, तो तुसी ऐसी क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर दो। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस द मॉडुलस एंड पावर इज x बोथ साइड्स, तो तुसी पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो। मॉडुलस करना है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, अंडर द रूट, और पावर कितनी है x, राइट हैंड साइड कितनी है x, इधर कितना आ गया 2 अंडर द रूट, 2 अंडर रूट मतलब 2 पावर हाफ पावर x, दिस इज 2 पावर x, इतने कितना आ गया 2 पावर x बाय 2, पावर ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है ना, ठीक है। एंड दिस इज 2 पावर x, बेस सेम है, पावर्स इक्वल हो जाएंगे आपस में, दोनों इक्वल है ना, तो x बाय 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2x, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई जो है सबट्रैक्ट कर दो, तो 2x माइनस x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0, है ना। x को राइट हैंड साइड में ले आया और 0 करता, तो x एक सोल्यूशन, सोल्यूशन का मतलब की होता है कि तुसी इधर जो वेरीएबल है उसकी वैल्यू कढ़नी है कि उसकी वैल्यू कितनी आती है। हुण आप जो वैल्यू कढ़ी है उसदे विच x की वैल्यू 0 आ रही है, एंड 0 इज अ जीरो इंटीग्रल बट इट इज नॉन जीरो इंटीग्रल, तो ओनली सोल्यूशन आया है, ओनली इंटीग्रल सोल्यूशन, है ना। पूछ क्या रहा है नॉन जीरो इंटीग्रल,
तो नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन कितना आया फिर? नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन इज इक्वल टू जीरो। कुछ नहीं आया, मतलब नथिंग, ऐ भी कह सकते हो कि नहीं है। ठीक है, ये आंसर आ गया, क्योंकि जो भी सोल्यूशन आया वो अपने को जीरो इंटीग्रल आया, मतलब जीरो इज आल्सो एन इंटीजर। ठीक है, बट वो पूछ रहा सीगा कि नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन कितने ने, तो नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन नहीं है, ऐ कह सकते हैं, जीरो इंटीग्रल ही आ रहा है अपने को, राइट। 19th क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेटमेंट? इफ a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, e प्लस आयोटा f, g प्लस आयोटा h, ये चार ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, दैट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, दैट इज डिफरेंट कैपिटल A, ये डिफरेंट ਕੰਪਲੈਕਸ नंबर है। वो कह रहा है कि ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ अगर ਇਹਦੇ ਬਰਾबर ਹੋਵੇ then show that a square plus b square, c square plus d square and this is equal to a square plus b square। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਡਲਸ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ a ਪਲਸ ਆਇਓਟਾ b ਦਾ ਮੋਡਲਸ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਆਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੋਡਲਸ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਆ ਆਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ, ਔਰ a ਪਲਸ ਆਇਓਟਾ b ਦਾ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, अगर मैं वह मॉडलस कट देव तो मैं अबाउट टू अबाउट आंसर तक पहुँच सकता। ठीक है, तो फिर आप दोनों पासे यदा मॉडलस ले लेने a प्लस आयोटा b, ठीक है, और हर एक का अलग अलग कर देने, और वो उपर भी फार्मूला लग्या है, लैना तो इकट्ठा है लेकिन अलग अलग करता वह। देखा फार्मूला पता किहड़ा है, प्रॉपर्टीज़ कीतियां सी ना, वो जरा ध्यान नाल देखो, और राइट हैंड साइड विच भी आप मॉडलस ले लिया। किहड़ा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं? इफ फार्मूला इज़ Z1 Z2 मॉडलस, दो ਕੰਪਲੈਕਸ नंबर की मल्टीप्लीकेशन का मॉडलस अगर कढ़ना है तो अलग अलग मॉडलस कढ़ के फिर मल्टीप्लाई कर दो, सेम रिजल्ट आएगा। बिकॉज तो आ फार्मूला लगाया मैं, ठीक है, टोटल मॉडलस लिया सी लेकिन अलग अलग करता। हुण इहदा अलग मॉडलस आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट, देखिया रिजल्ट आ ही गया लगभग, है ना, समझ गए होगे तुसी। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, मॉडलस पता है ना किमें कटी दा है, बस रियल और इमेजनरी पार्ट ले लो, उसका स्क्वेयर कर दो, स्क्वेयर करके ऐड कर दो, आयोटा नहीं लेना होंदा विच, अंडर रूट आ गया, और इत्थे आ गया जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर अंडर द रूट। ओके, नाउ लास्ट स्टेप इज स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड स्क्वेयर करोगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट द रिजल्ट a स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर ई स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर जी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर एंड राइट हैंड साइड इज a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। दैट इज द रिजल्ट। ओके, सो दिस इज 20th question. Given that 1 plus iota over 1 minus iota power m, this is equal to 1. Find the least positive integral value of m. m दी सब तो छोटी इंटीग्रल वैल्यू, और दैट शुड बी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू आप पता करनी है कि की हो सकती है। ठीक है, तो पहले इनू सॉल्व कर लेने। फिर 1 प्लस आयोटा रैशनलाइज करते हैं, नीचों डिनोमिनेटर तो आयोटा ख़त्म हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा पावर m एज इट इज़ एंड इज इक्वल टू 1। ऊपर मल्टीप्लाई करांगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर आएगा ना, या दोनों ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई कर दो तो भी सेम है, तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर आएगा, 1 स्क्वायर माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, राइट, और नीचे कितना आ जाएगा 1 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 1 प्लस 1, राइट, और दिस इज द ब्रैकेट पावर m एज इट इज एंड इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 कैंसल, 2 आयोटा ओवर 2 पावर m, दिस इज इक्वल टू 1। की आया फिर अपने को 2 नाल 2 कैंसल, आयोटा पावर m इज इक्वल टू 1,
ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਓਟਾ ਦੀ ਆ ਪਾਵਰ ਹੈ, ठीक है, जो भी पावर लवो आंसर की आना चाहिए है 1 आना चाहिए, और 1 क्या है? +1 है। हुण तुसीं इत्थे m की वैल्यू सोचो, m की वैल्यू सोचो, m की वैल्यू अगर आप 1 लैने आ तो आयोटा पावर 1 इज आयोटा, ਇਹਦਾ मतलब m की पावर 1 नहीं हो सकती, m इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि 1 है ना, तो आयोटा पावर 1 करांगे तो आयोटा ही आएगा। तो m की पावर 2 लवो, क्योंकि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर आप सोच रहे हैं, लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर सोच रहे हैं सच दैट इत्थे पावर भरीए तो +1 आ जाए, वो तुसी कैलकुलेट सोचना है। तुसी हुण m की वैल्यू 2 लवो, तो m की वैल्यू 2 लवांगे तो आयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा? -1, पर -1 इत्थे आना नहीं चाहिए, तो की है m की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती। m की वैल्यू 3 लवो तो की आ जाएगा? आयोटा पावर 3, आयोटा पावर 3 कितनी होंदी है? माइनस आयोटा, तो यदा मतलब m की पावर 3 भी नहीं हो सकती, m की वैल्यू 3 भी नहीं हो सकती, क्योंकि आयोटा पावर 3 इज माइनस आयोटा। चलो 4 भरो, फिर 4 कितनी आएगी? आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 4 मीन्स आयोटा स्क्वेयर स्क्वेयर, -1 स्क्वेयर इज 1, नाउ ये आ गई आयोटा पावर 4 इज 1, ठीक है। हम कहते हैं लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू कटनी है, ਇਹਦਾ मतलब की समझ आ रहा है ਆਪਾਂ ਨੂੰ कि जो 4 ਦੇ मल्टीपल्स ने ਉਹਦੇ वास्ते 4m इज इक्वल टू 4k, k की है? k इज एन इंटीजर, k बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी इंटीजर, तो फिर k नैगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, लेकिन आप किहड़ा लेना है? पॉजिटिव इंटीजर। ਇਹਦਾ मतलब m की पावर अगर 4 के मल्टीपल्स विच आवेगी, है ना, जदों आप k 1 लवांगे तो पावर कितनी आ गई? 4 × 1, k की वैल्यू 2 लवांगे तो पावर कितनी आ जाएगी? 4 × 2 यानी कि 8, k की पावर 3 लवांगे तो कितनी पावर आ जाएगी? 3 12, है ना। इन्हां सारियां वास्ते आयोटा पावर m कितना होएगा? +1 होएगा, आ चीज़ है अपने कोल। लेकिन इन्हां सारियां विचों लिस्ट किहड़ी है? लिस्ट मांग रहा है ना, लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, लिस्ट घटों घट किहड़ी है? फिर आ वाली है, जिहदे वास्ते k की वैल्यू 1 है, तो फिर लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर या इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज 4 × 1, यानी कि 4, दिस इज योर आंसर। यानी कि m की वैल्यू इत्थे 4 आएगी तां भी +1 आएगा, 4 दूना 8 आएगी तां भी +1 आएगा, 4 तीए 12 आएगी, 4 चौके 16 आएगी, 4 के मल्टीपल्स आते जाएंगे, प्लस आते जाएंगे। लेकिन उन्होंने सारे पावर्स विचों लिस्ट केड़ी है? लिस्ट है 4 पावर, तो आयोटा पावर 4 इज +1, तो वैल्यू आंसर की आया? लिस्ट पावर 4। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 20th, ठीक है। होप तुहानू ये चैप्टर पूरा समझ आया होना और तुसी नाल इहनू कर भी रहे होवोगे। पास होने बारे नहीं सोचना, टॉप होने बारे सोचना है। तुहानू पता ही है तूर सर के स्टूडेंट्स टॉप जाने बारे सोचते हैं, ठीक है। ट्राई करो और ये जो टॉपिक्स ने उन्होंने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग बस शुरू हो जाओ, ठीक है। फिर उदू बाद एक्सरसाइज ट्राई करो, एग्जाम्पल्स देखो पहले जो सॉल्व एग्जाम्पल्स में दसिया ने, फिर एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज नू 1-2 बारी कोई गल नहीं, एक बारी जो मैं तुहानू करवाया 2 बारी तुहानू करवाया उन्होंने तुसी देख सकते हो, वीडियो नू रोक के देखो, समझ आ जाएगा। नोट्स बनाओ, फिर कापी के उपर भी करो उन्होंने, ठीक है। उदू बाद फिर तीसरी चौथी 5वीं 6वीं बार जो है खुद ट्राई करो। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन तुहानू रह जाता है, नहीं क्वेश्चन समझ आता, टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, तो मेरे कमेंट बॉक्स के उपर तुसी कमेंट करो उत्थे ही वीडियो के उपर कि आ चीज़ सानू समझ नहीं आ रही हैगी। और होर बच्चों की भी तुसी हेल्प करो, उन्होंने तो ये ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ 100% ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਾਂ, 100% ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਫੁੱਲ ਇਨ ਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਾਂ। ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਰਹੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਔਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ
ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ।